Assalamu alaikum students. Welcome in the class of surface chemistry. As you can see, this presentation is submitted by Saira Sadiq, and the topic of this presentation is application of adsorption and types of catalysis. So in this presentation actually there are two different types of topics. In the first topic we will cover different applications of adsorption in detail, and the second part of this presentation will be types of catalysis. So let's continue. So what are the applications of adsorption? Adsorption finds a large number of application both in laboratory and industry. So a large number of industrial process like uh, system of ammonia. This is actually synthesis of ammonia, manufacture of sulfuric acid, synthetic petrol, alcohols, etc. These are catalyzed reactions where the reactions are adsorbed on the surface of solid catalysis. ठीक है, तो ये सारे रिएक्शंस जो हैं ये एडजॉर्प्शन की एप्लीकेशंस में आते हैं. इसमें अमोनिया की सिंथेसिस है, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सिंथेटिक पेट्रोल है, अल्कोहल्स है. ठीक है, दीज आर ऑल कैटलाइज्ड रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट्स एडजॉर्ब हो जाते हैं सरफेस ऑफ सॉलिड कैटालिसिस कैटलिस्ट पे, और फिर वो रिएक्शन जो है वहाँ पे परफॉर्म होता है और कैटलिस्ट की सरफेस पे ही प्रोडक्ट्स हमें ऑब्टेन्ड होती हैं. Softening of hot water by ion exchange is also based on adsorption of cations. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम इसके लिए चारकोल यूज करते हैं. चारकोल के ऊपर आयंस कुछ प्रेजेंट होते हैं और वाटर में से हार्ड आयंस जो हैं उस चारकोल के ऊपर मौजूद आयंस के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं, और इस तरह से वाटर के अंदर मौजूद हार्ड आयंस चारकोल के ऊपर मौजूद सॉफ्ट आयन से तब्दील हो जाते हैं. इस तरह क्या होता है कि हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. Removal of coloring materials from various types of solution by charcoal. This is also an example of adsorption. Surface active agents. These are widely used in washing, paints and lubricants. ठीक है, तो जो surface active agents हैं these are also widely used washing में, paints में, ये paints लफ्ज़ है, और lubricants में. ठीक है, और इन सब का जो mechanism of action है वो adsorption के phenomena पे डिपेंड करता है. Then we have drug functions of drug. Most of drugs they function through adsorption on body tissues and germs. ठीक है, तो ज़्यादातर drugs जो हैं ये भी adsorption के process के थ्रू से अमल करते हैं. So the other application of adsorption include dyeing of fabrics, tanning of leather, electroplating, etc. These are all examples where adsorption finds immense applications. Graphite is used as lubricants. This action is also based on adsorption. ठीक है, ग्रेफाइट lubricant के तौर पे यूज होता है, तो ग्रेफाइट भी ऊपर वाली सतह पे ही रहता है, नीचे नहीं आता. So this is also an adsorption phenomena. Silica and aluminum gel possess the property to adsorb moisture, hence they are used to remove moisture from room and to dehydrate and purify gases like carbon dioxide, chlorine, helium and nitrogen. So this is a very important application of silica and alumina, which is based on adsorption, as they can adsorb moisture on their surfaces.
तो इस तरह इसलिए हम सिलिका और एलुमिना को डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं। In order to retard the evaporation of water, a monolayer of a stable substance is deposited on the surface of water in a lake. This application of adsorption we have already studied. The phenomena of adsorption is used in the detection of endpoint of precipitation titrations using dyes. These dyes are called adsorption indicators. So adsorption also finds application in the endpoint determination. Other applications of adsorption include the phenomena of adsorption nowadays is extensively employed for the recovery and concentration of vitamin and other biological substances. Chromatography, a powerful and versatile technique used in separation and analyzing minute quantities of various components from a mixture. This is also based on adsorption. तो ये जो है बहुत ही important application है adsorption की, that is chromatography. Chromatography is an analytical technique in which we identify and quantify different substances. So this is also based upon adsorption. In curing disease, some drugs, these are adsorbed on germs. The use of spirit as a wetting agent in furniture painting is well known example of adsorption. ठीक है, तो ये जो हम फर्नीचर पेंटिंग में आखिर पे स्पिरिट यूज़ करते हैं फर्नीचर पॉलिशिंग वगैरह में वेटिंग एजेंट के तौर पे, तो वो भी अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता बल्कि सतह पे ही एब्जॉर्ब हो जाता है। The low-grade sulfide ores are freed from silica and other earth matter by froth flotation process। ठीक है, तो ये जो लो ग्रेड सल्फाइड ओर्स हैं, ठीक है, उनको फ्री किया जाता है, उनके अंदर सिलिका और दूसरे अर्थ मैटर होते हैं। इस प्रोसेस को भी हम एड्जॉर्प्शन के जरिए इन लो ग्रेड सल्फाइड को भी हम हाई ग्रेड सल्फाइड में कन्वर्ट करते हैं बाय मींस ऑफ एड्जॉर्प्शन। और जिस प्रोसेस के जरिए करते हैं उसका नाम है froth flotation process. So now we have types of catalysis. Actually इससे पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन कैटालिसिस का मैंने बहुत तफसील से दिया था और उसमें हमने कैटालिसिस की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी किया था, जिसमें सिंपल कैटालिसिस भी था और इसके अलावा ऑटो कैटालिसिस, नेगेटिव कैटालिसिस हमने स्टडी किया था और इसके अलावा प्रोमोटर्स, इनहिबिटर्स। Now we will see what are the types of catalysis. So there are two types of catalysis. The first one is homogeneous catalysis and the second one is heterogeneous catalysis. So what is homogeneous catalysis? In homogeneous catalysis, the catalyst is present in the same phase as the reacting substances. Many homogeneous catalyzed reactions have been studied in the gas and liquid phase. So some common examples of catalyst in the gas phase are, यानी ये जो होमोजीनियस कैटलिस्ट होगा उसमें क्या होगा, जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दे विल बी इन द सेम फेज, वो एक ही फेज में होंगे। यानी जैसे अब इस एग्जांपल में अगर आप देखें, सल्फर डाइऑक्साइड इज अ गैस, ऑक्सीजन इज अ गैस एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड विच इज देयर प्रोडक्ट, दिस इज ऑल्सो अ गैस। यहाँ पर ये सल्फर ट्राईऑक्साइड गलत लिखा हुआ है, इसको आपने ठीक कर लेना है। यहाँ पर आएगा SO3, 2SO3। तो इसमें जब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ मिलते हैं तो दो मॉलिक्यूल सल्फर ट्राईऑक्साइड के बनते हैं, यानी 2SO3। ठीक है, और यहाँ पर ये O जो है ये भी आपने कैपिटल कर लेना है। सो दिस इज द मिस्टेक ऑफ द स्टूडेंट हु हैज मेड दिस प्रेजेंटेशन। तो अब इसमें ये प्रोसेस होता कहाँ है, ये लेड चेम्बर प्रोसेस में फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड nitric oxide get catalyzed by the oxidation of sulfur dioxide। ठीक है, तो अब इसमें लेड चेम्बर प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोसेस होता है, राइट, तो यहाँ पर ना इस रिएक्शन में यहाँ पर लिखने में भी थोड़ी सी मिस्टेक है। असल में ये वाला रिएक्शन जो है ये यूज होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड।
जिसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं बाय रिएक्टिंग इट विद ऑक्सीजन, और इसकी मैन्युफैक्चर में नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट के तौर पर यूज होता है। ठीक है, तो इसमें ये देखें कि होमोजीनियस कैटलिस्ट जो है, कैटालिसिस की वो फॉर्म है जिसमें जो कैटलिस्ट है वो उसी फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिस फिजिकल फॉर्म में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, सल्फर ट्राईऑक्साइड भी एक गैस है, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो यूज होता है यहाँ पर कैटलिस्ट के तौर पर, वो भी एक गैस है। So this is an example of homogeneous catalysis. Hope you people have now understood it. These are the other examples of homogeneous catalysis. Decomposition of acid aldehyde is catalyzed by iodine vapors. ठीक है, तो एसिड एल्डिहाइड जो है ये भी वेपर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और इसकी जो रिएक्शन प्रोडक्ट है वो मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये भी गैसियस फॉर्म में होते हैं, और आयोडीन वेपर यानी ये भी वेपर फॉर्म में है। सो ऑल दीज reactant products and catalyst which is iodine vapor, all of these are in vapor form. So this is also an example of homogeneous catalysis, right? So nitric acid act as a catalyst in the combination of carbon monoxide and oxygen. ठीक है, अब इसमें नाइट्रिक एसिड जो कैटलिस्ट के तौर पर इस रिएक्शन में यूज होता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो नाइट्रिक एसिड भी गैसियस फॉर्म में यानी वेपर फॉर्म में कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करता है। तो इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, यू नो ऑल ऑफ दीज आर आल्सो गैसियस सब्सटेंसेस। तो अब इसमें एग्जांपल्स ऑफ होमोजीनियस कैटलिस्ट इन लिक्विड फेज। ठीक है, अब ये वाला जो था, ये सारे अभी जो हमने एग्जांपल्स होमोजीनियस कैटालिसिस की स्टडी की, वो एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस इन गैसियस फॉर्म, यानी ये ऐसे मॉलिक्यूल्स थे, ये ऐसे रिएक्शंस थे जिसमें रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और कैटलिस्ट, ऑल ऑफ दीज दे वर इन द गैसियस फॉर्म। अब हम स्टडी करेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस इन लिक्विड फेज। तो जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है होमोजीनियस कैटालिसिस इन लिक्विड फेज, दीज आर एसिड बेस कैटालिसिस। The common acid catalyst in water is the hydronium ion, and the most common base catalyst is hydroxyl ion. ठीक है, अब यहाँ पर ये हाइड्रेशन आयन नहीं है, ये हाइड्रोनियम आयन है, यानी H प्लस आयन। तो अब लिक्विड फेज में जो एग्जांपल है होमोजीनियस कैटालिसिस की, वो क्या है, वो है जी हमारे पास हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं। इफ एन एसिड कैटालिसिस a reaction in the reaction said to be the subject of acid catalyzed reaction। ठीक है, अब एक रिएक्शन को अगर ये हाइड्रोनियम आयन कैटालाइज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि रिएक्शन जो है वो एसिड कैटालाइज रिएक्शन है। ठीक है, however it was shown that different acids have different catalytic activity. Hydrochloric acid has a greater activity than acetic acid, so it is evident that actual catalysts these are hydrogen ions। अच्छा जी, तो यहाँ पर बात हो रही है कंपटीशन की बिटवीन एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, इसमें से ज़्यादा अच्छा कैटलिस्ट जो है वो कौन सा है। तो इसमें आपको बताया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एज कम्पेयर्ड विद एसिटिक एसिड। तो वाटर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, इसलिए ये एक अच्छा कैटलिस्ट होगा एज कम्पेयर्ड विद एसिटिक एसिड के, जो कि वाटर के अंदर कम मिकदार में हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन क्रिएट करते हैं। तो इस वजह से एसिटिक एसिड की निस्बत जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दिस इज अ गुड कैटलिस्ट इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज द एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस कैटालिसिस इन लिक्विड फेज। इसमें आप देखें कि ये हमारे पास सुक्रोज है, शुगर है, इसको जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं और ये रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ HCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl एसिड कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करेगी और ये वाटर को आयनाइज कर देगी। वाटर की आयनाइजेशन से हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होंगे और वो इस सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ब्रेक डाउन कर देगी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस कैटालिसिस इन लिक्विड फेज।
So homogeneous catalysis continues. Sorry, this is heterogeneous catalysis. अब heterogeneous catalysis में क्या होगा, as the name indicate, इसमें हमारे पास ये जो reactants products और जो catalyst है उनकी वो different phase में होंगे. For example यहाँ पर देखें, in contact process for the manufacture of sulfuric acid, sulfur dioxide is directly oxidized into sulfur trioxide by atmospheric oxygen in the presence of platinum as catalyst. तो इस रिएक्शन में यहाँ पर एरो साइन के ऊपर प्लेटिनम Pt लिखा होना चाहिए था. तो इस रिएक्शन में क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है. तो इसमें आप देखें कि सल्फर डाइऑक्साइड भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस है. लेकिन इसमें जो प्लेटिनम यहाँ पर जो कैटलिस्ट के तौर पर यूज हो रहा है वो सॉलिड है. तो इस तरह से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स और कैटलिस्ट की जो फिजिकल फॉर्म है वो डिफरेंट है. यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैशियस फॉर्म में है और कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में है. इसी को हम हेट्रोजीनस कैटालिसिस कहते हैं. तो अब होता क्या है कि in heterogeneous catalyzed reactions the catalyst is present in a different phase from the reactant. In number of cases the catalyst is the solid phase and the reactants are gaseous in most cases or liquid in others. ठीक है. The catalysts which are commonly used, these are metals like platinum, nickel, copper and iron, and certain metal oxides such as ferric oxide, zinc oxide, molybdenum oxide etc. ठीक है. अब देखें ये मैंने आपको पहले तफसील से समझा दिया था. ठीक है. तो हेट्रोजीनस कैटालिसिस में क्या होगा कि या तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स गैशियस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं और आमतौर पे कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में होगा. और जो सॉलिड कैटलिस्ट हम यूज करते हैं वो होगा प्लेटिनम है, निकल है, कॉपर, आयरन एंड सर्टेन मेटल ऑक्साइड लाइक फेरिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये हो सकता है. सो दिस वाज अबाउट हेट्रोजीनस कैटालिसिस. Other examples of heterogeneous catalysis it include in Haber's process for manufacture of ammonia, in which nitrogen and hydrogen they are mixed in the ratio of 1:3, and this results in the formation of ammonia. We use iron as a catalyst. Now the reactants products, these are gases, and iron catalyst, this is solid. इसी तरह अमोनिया की ऑक्सीडेशन से नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर बनता है और इसमें हम फेरिक और बिस्मथ का मिक्सचर कैटलिस्ट के तौर पर यूज करते हैं विच आर सॉलिड्स. दीज आर अगेन गैसेस. इसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ HCl बाय ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट. अब इसमें ये वाला टू जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सबस्क्रिप्ट में आना चाहिए था. तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ HCl बाय ऑक्सीजन ये होती है इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड एंड क्यूप्रस क्लोराइड अगेन इज सॉलिड. वाइल HCl जो है यहाँ पे फिजिकल स्टेट वैसे मेंशन की होनी चाहिए, मेंशन नहीं की. बुक में आप चेक कर लें. HCl एक्चुअली गैशियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हियर इट इज इन द गैशियस फॉर्म. सो we will take HCl in gaseous form, oxygen it will react with oxygen in gaseous form, वाटर वेपर्स बनेंगे और क्लोरीन गैस बनेगा, जबकि जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो सॉलिड फॉर्म में है. So these are all the examples in which reactants and products these are in solid form and the catalyst sorry these are in gaseous form and the catalyst is in solid form. So these are the examples of heterogeneous catalysis. I am hopeful student that you have found this lecture interesting and you have understood it. If any problem you are very welcome to ask. Thank you very much for watching this lecture and we will meet with another topic in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.